Today we'll discuss the best flowing rivers, and in addition to that, we'll discuss some small rivers which we have left while we were discussing the big ones like Godavari and Krishna. While we were discussing, so we have left small rivers which are equally important for those regions, and some of the important dams are there. Some of the important waterfalls are situated on those rivers. So that is why those rivers are important. ठीक है, तो उसको फिर आज हम लोग डिस्कस कर लेंगे. Right, so I'm sharing the screen with you. Okay, so this is the screen. The first river we'll be discussing today is Narmada and Tapi. So Narmada and Tapi river system we'll discuss. I hope you can very well see, or you can just make sure that you know all these states. So this is Madhya Pradesh, this is Maharashtra, this is Gujarat, here it is Chhattisgarh, Jharkhand, Odisha and West Bengal. So मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात और राजस्थान, ये वाला जो रीजन है, आज हम ज्यादा इस पे कंसंट्रेट करेंगे. We'll discuss the rivers of Rajasthan also today, those inland rivers and the rivers which are draining their waters into Gulf of Khambat and Run of Kutch. So we'll start with the rivers draining waters in Gulf of Khambat, or it is also known as Gulf of Cambay. And this gulf is over here. This is Gulf of Khambat. Mostly the rivers which are originating in Madhya Pradesh, which are west flowing, or originating in Rajasthan or Haryana or Gujarat even, are pouring their waters into Gulf of Khambat. So we have to remember this place, Gulf of Khambat. We'll start with Narmada first. Narmada. Narmada is also known as Reva. नर्मदा का दूसरा नाम है, और आई शुड राइट ओवर रेवा. ठीक है, रेवा. और इसको लोकली नर्बुदा भी बोलते हैं. नर्बुदा, अंग्रेजों ने इसका नाम नर्बुदा रखा था. नर्बुदा, नेरबोडा. Right, so these are the local names, or the names naming done by the Britishers. Now, Narmada starts from the Mackal range. Mackal range, which I showed you earlier in that video of ranges in India. It starts from Mackal range. Mackal range covers both these areas of Madhya Pradesh, eastern Madhya Pradesh, and Chhattisgarh. So ये वाला जो region है, it is all Mackal. So Narmada starts and rises in from Amarkantak plateau in the Mackal range. So just here near Chhattisgarh's border, it rises, right? So the point is in Anuppur district. Anuppur district में है point, and then Narmada goes all over like this, and the mouth of Narmada is in Gulf of Khambat. Okay, so this place, this whole region is Vindhyas range, and below Narmada it is Satpura range. Okay, it goes like this, even makes border with Maharashtra, and Gujarat, and Maharashtra and Madhya Pradesh. So you can say Narmada makes borders with both. It is a border between Madhya Pradesh and Maharashtra, as well as Gujarat and Maharashtra, and it merges like this. Okay, so it's in here, Gulf of Khambat. This is Anuppur district. I'll mark with black pen. Okay, Anuppur district in Madhya Pradesh. This is Vindhyas, right? And these are Satpuras, right? Amarkantak plateau. Okay. One more river which we were discussing while we were discussing the Ganga and Yamuna drainage system was Son. Son is also originating from this place only, right? Amarkantak. Okay. So Narmada is actually passing through the Rift Valley between Vindhyas and Satpura. रिफ्ट वैली बनती है जब टेक्टोनिकली प्लेट्स सेपरेट होती हैं
या एक रिफ्ट क्रिएट होता है, कोई पर्टिकुलर प्लेट टूटती है, या दो सेपरेट प्लेट्स डाइवर्ज करती हैं, तो बीच में जो गैप बनता है एंड दैट लो लैंड बिटवीन टू हिल्स इज कॉल्ड द रिफ्ट वैली. तो जियोलॉजिकली फॉर्म्ड वैली इज बेसिकली, और टेक्टोनिकली फॉर्म्ड वैली इज रिफ्ट वैली, जिसके बीच में से नर्मदा गुजर रही है. ओके, अमरकंटक प्लेट्यू याद रखना है. नाउ one of the important waterfalls is on Narmada, which is Dhuandhar Falls. It's near Jabalpur over here. So Dhuandhar Falls, or it is also called the Cloud of Mist. Cloud of Mist. It has rich alluvial deposits along its length and breadth. Narmada. It's rich in alluvial deposits, and it forms marble gorge, right? Marble gorge. बहुत सारा old limestone regions से pass करती है, and those limestone regions now metamorphically have changed into marbles, and now it is forming the marble gorge. Deep valleys are called gorges. तो बहुत सारा मार्बल यहाँ से निकलता है नर्मदा वैली से. अमरकंटक के बारे में खास चीज ये है, इट हैज गॉट द रेडियल पैटर्न. अमरकंटक जो है वहां से बहुत सारी रिवर्स रेडिएट कर रही हैं, छोटी बड़ी रिवर्स. सो इस तरह का एक रेडियल पैटर्न ऑफ रिवर्स दिखता है अमरकंटक प्लेट्यू में. The left bank tributaries, left bank because the river is flowing towards west, so the left bank will be all rivers which are this place Bharuch, it's in Gujarat. वहां पे जाते ही नर्मदा वाइडन्स, तो नर्मदा का जो चैनल है वो बहुत बड़ा हो जाता है भारूच पे जाकर. नर्मदा इज ऑल्सो कॉल्ड द लाइफलाइन ऑफ मध्य प्रदेश. इंपॉर्टेंट प्लेसेस ऑन नर्मदा: जबलपुर, होशंगाबाद, ठीक है, सिरोही. ऑल दीज एरियाज आर important places on Narmada River in Madhya Pradesh. Important national parks: Kanha National Park, Satpura National Park. I should write over here: Kanha National Park, Satpura National Park. Then there is Mandla Fossil National Park. Mandla Fossil Park. Okay. It is a plant fossil park. Okay. यहाँ पे plant fossils मिलते हैं. Then there is a Dindori National Fossil Park. Dindori National Fossil Park. You will get fossils of both plants and animals over here. Dindori is a district in Madhya Pradesh, and Mandla is also a district in Madhya Pradesh. Then you have caves, Bagh caves, and Beda Ghat. Beda Ghat caves are on the banks of Narmada. Then there is an important
You all must be knowing Sardar Sarovar Dam. It's in Gujarat, Navgaon district, Gujarat. Okay, it's here, uh, just close to the Gulf of Khambat. Sardar Sarovar, a very a dam which was in limelight, Sardar Sarovar Dam. It's in Navgaon district of Gujarat. Okay. Then there is a Indira Sagar Dam, which is in MP only. So Sardar Sarovar Dam is actually providing electricity and water for irrigation to four states. One is Gujarat, one is Madhya Pradesh, one is Maharashtra and one is Rajasthan. चार states को पानी irrigation के लिए और बिजली पहुंचाता है. uh, Sardar Sarovar Dam, which was laid, the first stone of Sardar Sarovar Dam was laid down by late Prime Minister Nehru ji, and the work was stopped in 1995 due to the disputes and order of Supreme Court. Then again resumed, and then this was completed in 2018. Okay. Apart from Narmada, we have many rivers which are flowing through Rift Valley. Rift Valley से बहुत सारी rivers flow करती हैं. Not this Rift Valley, but other Rift Valleys. One is Damodar, which is also flowing through Rift Valley, which I was discussing the other day. One is Mahi, which I told you just now. ठीक है. Mahi, originating from Madhya Pradesh, then going to Rajasthan, then again coming to Gujarat, and right, it is also the river flowing through Rift Valley. And Tapi is flowing through Rift Valley. So four of the rivers right here are flowing through Rift Valley: Narmada, Mahi, Damodar, and Tapi. Okay. So नर्मदा का जो ड्रेनेज है, इम्पोर्टेंटली नर्मदा मैक्सिमम जो बह रही है वो मध्य प्रदेश में बह रही है. ठीक है. मध्य प्रदेश के बाद नर्मदा दो स्टेट्स के बॉर्डर क्रिएट करती है, जैसे मैंने आपको बताया. मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का जो बॉर्डर है जिसमें नर्मदा फ्लो करती है, सो दैट इज ऑफ 39 किलोमीटर्स. ठीक है. 39 किलोमीटर्स, यानी 39 किलोमीटर का बॉर्डर है जो नर्मदा बनाती है महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के साथ, एंड 46 किलोमीटर बॉर्डर बनाती है गुजरात और महाराष्ट्र के साथ. सो 46 किलोमीटर का बॉर्डर. तो ये याद रखना कि इतना ट्रैवल ये महाराष्ट्र में करती है. 46 प्लस 39 किलोमीटर्स इट ट्रेवल्स इन महाराष्ट्र. ओके. सो इफ एवर somebody asked for the exam में पूछा जाता है कि कितना कितना ट्रैवल करती है, क्या महाराष्ट्र में नर्मदा ट्रैवल करती है कि नहीं करती, तो आंसर इज यस, इट ट्रैवल्स इन महाराष्ट्र. ओके. तो important flora and fauna, you can just say in Kanha National Park you will find too many fauna species. Tigers are there, leopards are there, sambar is there, cheetal, bedki, all these fauna. Bagh caves, I already told you, Beda Ghat, those two caves, archaeologically important. So the first tributary, the left bank tributary of Narmada is Tawa. Okay. So Tawa originates from the district in Betul district of MP, which is closer to Maharashtra, just on the borders of Maharashtra right here. Right. So Betul se originate karti hai Tawa, and it goes like this and merges into Narmada. So right here it is river Tawa. Tawa is an important river of Madhya Pradesh. The confluence point of river Tawa and Narmada is Bhadraban. Bhadraban is in Hoshangabad district, Madhya Pradesh. Okay. The place is Bhadraban. Okay. Tawa is known as a rich coal reserve. इसके ड्रेनेज में coal reserves बहुत हैं जहाँ पे बहती है. Okay. So Satpura ranges से originate कर रही है. This region is Satpura. Right. Now next river is Hiran. Next river is Hiran, which is a right bank tributary. Hiran is originating in Gujarat here. Okay. And it mixes into Narmada just near Bharuch.
This river is Hiran. I hope you all can see the route of Hiran. This is the route of Hiran, right? It originates in Gujarat only, and the place of confluence of Hiran and Hiran and Narmada is Talala town. तलाला तलाला में मिक्सअप करती है ये किसके साथ? नर्मदा के साथ। ठीक है। ओरिजिन है सासा हिल्स में, ऑल्दो इट इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट। सासा हिल्स इन गुजरात, फिर भी बता दे रहा हूँ। हिरन ओरिजिनेट्स फ्रॉम सासा हिल्स इन गुजरात एंड कॉन्फ्लुएंस पॉइंट है तलाला। द इम्पोर्टेंट टेम्पल इज कामलेश्वर ऑन रिवर हिरन। कामलेश्वर वही है जहां पर इसका कॉन्फ्लुएंस है, कामलेश्वर टेम्पल। Okay, so this is Narmada, right? Now I'll discuss with you the next river, which is Tapi. Okay, तापी का ओरिजिन एक और रिवर के ओरिजिन से मिलता जुलता है, which was we were discussing in Godavari river system. The tributary of Godavari was Vardha. वर्धा के साथ, वर्धा जहां से ओरिजिनेट करती है, द प्लेस इज नोन एज मुल्ताई। मुल्ताई इन दी डिस्ट्रिक्ट बेतुल, बेतुल डिस्ट्रिक्ट मुल्ताई, वहां से वर्धा भी ओरिजिनेट करती है और वहीं से तवा ओरिजिनेट करती है, सॉरी तापी ओरिजिनेट करती है। सेम गल्फ ऑफ खम्बाट में जाती है, जस्ट साउथ ऑफ वेयर दी माउथ ऑफ नर्मदा इज देयर, द साउथ ऑफ दैट माउथ नर्मदा तापी का माउथ है। ठीक है, तो कुछ यहां से ओरिजिनेट करेगी, राइट ओवर हेयर, एंड इट विल फ्लो लाइक दिस, एंड यहाँ पे उसका माउथ है। आई गेस आई शुड rub some of the points over here. Should I? Okay. Okay. So now I can write. This is Tapi or Tapti. River Tapi or Tapti, originating from Multai. Multai is in Betul district, Madhya Pradesh, and from Multai it's in Satpura mountains, सतपुरा रेंजेस, और वहां से ओरिजिनेट करके ये जाती है गल्फ ऑफ खम्बाट में। इंपॉर्टेंट डैम और ऑन तापी इज ओकाई डैम। तापी पे इंपॉर्टेंट डैम ओकाई डैम। ओके, सूरत इज ऑन द बैंक्स ऑफ तापी, राइट। सूरत इज नॉट एग्जैक्टली ऑन दी बैंक्स, सूरत के जस्ट साउथ में तापी आएगा, तो नियरेस्ट टाउन जो है वो सूरत है। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हालांकि उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है तापी की ट्रिब्यूटरीज, इवन देन यू कैन राइट सम ऑफ द लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। तो तापी की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ और राइट बैंक भी लिख देता हूँ। लेफ्ट बैंक में आती है पूर्णा गिरना, पूर्णा गिरना, you just remember the names Purna, Girna and Vaighar. Right bank tributaries of Tapi are Arunavati, Ganjali और गंजल। ओके, गंजल एंड गोमई। तो ये तापी की राइट बैंक और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक है, उकाई डैम इंपॉर्टेंट है, उकाई डैम इसके ऊपर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ट्विन सिस्टर ऑफ नर्मदा, सो दे बोथ फ्लोज इन द सेम डायरेक्शन एंड क्वाइट पैरेलली। अगर आप देख रहे हैं तो बहुत पैरेलल चल रही हैं साथ में, हालांकि नर्मदा इज वे लॉन्गर देन तापी, ऑलमोस्ट डबल इन लेंथ देन तापी, बट स्टिल दे आर नोन एज द ट्विन सिस्टर्स। ठीक है, next river which I'll take is Sabarmati. Sabarmati originates from Aravali, Aravali ranges. This is whole Aravali ranges.
ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम राजस्थान, यहाँ से राजस्थान से स्टार्ट कर कर ऊपर हरियाणा और दिल्ली तक, ये दिल्ली है, दिस इज हरियाणा, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, एंड दिस इज राजस्थान, एंड दिस इज गुजरात। ओके, तो पूरा अरावली रेंजेस में से ओरिजिनेट करती है फ्रॉम द सिटी ऑफ उदयपुर। इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम उदयपुर, कहीं यहाँ पर उदयपुर, एंड इट कम्स डाउन लाइक दिस एंड merges in the same Gulf of Khambat. So this is Sabarmati. Okay. Mouth is in the Gulf of Khambat. It is a seasonal river first of all. ये सीजनल है साबरमती, यानी मानसून सीजन में पानी आता है। और इम्पोर्टेंट प्लेसेस, साबरमती आश्रम, राइट, अहमदाबाद। तो दिस इज द रूट ऑफ रिवर साबरमती। साबरमती सीजनल है बट इनलैंड रिवर नहीं है, इसको इनलैंड नहीं बोला जाएगा बिकॉज ये गल्फ ऑफ कम्बाट तक पहुंच जाती है। नेक्स्ट रिवर इज लूनी। लूनी originates from the Pushkar Valley near Ajmer. Ajmer is right here, right? So Pushkar Valley से आती है लूनी, and लूनी you can say is like the inland river because ये जो आपका रण है वहां तक पहुंचती है, तो मार्शेस जो हैं रण के, रण ऑफ कच्छ के, वहां पे जाके खत्म हो जाती है। तो इसको, ये किसी ओशन में नहीं जा रही है, सी में नहीं जा रही है, तो इसको हम बोल सकते हैं दैट इट इज अ inland river. So Luni originates from Pushkar and goes like this, and यहाँ पर कहीं पर ये खत्म हो जाती है in the part of Rann. This is Rann of Kutch. So this is river Luni. Okay. Now Luni is first in the upper courses of Luni. It is known as Sagarmati. ठीक है, Sagarmati, and after it is joined by Saraswati river, which is again a seasonal river. सरस्वती ये ऐसे पीछे से आ रही है, ठीक है। सरस्वती के बारे में बताऊंगा, पहले आप ये देख लो लूनी कहाँ से लूनी कहलाती है। तो लूनी इस पूरे रीजन में, दिस पर्टिकुलर एरिया, ये वाला जो है, यहां पर ये सागरमती कहलाती है, सागरमती। तो लूनी का जो अपर रीच है वहां पर उसको सागरमती बोलते हैं। दिस प्लेस जहां पर सरस्वती लूनी से मिलती है, दिस इज सरस्वती। ये जगह है गोविंदगढ़। ओके, यहां के बाद ये लूनी कहलाती हैं। ओके, सो दिस इज लूनी, ठीक। तो जहां पे सरस्वती से कॉन्फ्लुएंस हो जाता है उसके बाद ये लूनी कहलाती है। इंपॉर्टेंट लेक इज सांबर लेक ऑन लूनी, सांबर। ओके, सांबर लेक। एंड व्हाई लूनी इज इंपॉर्टेंट, इसके बैंक्स पे यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ सॉल्ट, राइट। सो लूनी को सॉल्ट रिवर भी बोलते हैं, राइट। नाउ we'll see what is सरस्वती doing over here. सरस्वती बेसिकली जो अपर रीचेस हैं सरस्वती के, वो ओरिजिनेट तो हो रही है ऊपर, इसके जो अपर रीचेस हैं उसको हम हाकरा घग्गर भी बोलते हैं, घग्गर हाकरा। तो द रिवर इज एक्चुअली कमिंग फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। इसके जो अपर रीचेस हैं इसको हम घग्गर हाकरा बोलते हैं। सो घग्गर हाकरा, इट इज एक्चुअली ओरिजिनेटिंग फ्रॉम शिवालिक्स इन हिमाचल प्रदेश। और ये दोनों घग्गर और हाकरा जो हैं, दोनों नदियां जो, ये घाघरा तो नीचे से आ रही है फ्रॉम हरियाणा, बट ये O2 एक जगह है हरियाणा में, वहां पर दोनों मिलती हैं। सो घग्गर हाकरा का जो कॉन्फ्लुएंस है वो O2 में है हरियाणा में, और ये घग्गर हाकरा बीच में गायब हो जाती है कहीं, राइट। सो
एक जगह पर दिखती नहीं है, कई जगह पर, और कई बार ये गर्मियों के कारण भी नहीं दिखती है, गर्मी के कारण। तो उसके बाद ये वापस से दिखनी शुरू होती है और उसको फिर सरस्वती बोलने लगते हैं। सो द पॉइंट इज अननोन, बट बीच बीच के पैचेस में गायब मिलेगी आपको, और राजस्थान में वापस से ओरिजिनेट सरस्वती के रूप में करती हैं। तो द सेम रिवर इज सरस्वती। ठीक है। सो घग्गर हाकरा एक ही पूरा रिवर सिस्टम है, तो उसको कंबाइंडली आप बोल के चलेंगे। और O2 से ये आगे बढ़ती है एज घग्गर हाकरा, राइट। और पुष्कर के पास ये वापस जो है ये नजर आती है, दिस प्लेस। तो ये पूरा अजमेर का जो एरिया है वहां पर वापस से नजर आती है, और अभी सरस्वती की तरह बोला जाता है, इसको सरस्वती बोला जाता है। यहाँ पर इसको घग्गर आकरा नहीं बोलते हैं, राइट। सो दिस इज रिवर लूनी, रन ऑफ कच्छ में इसका माउथ है। नेक्स्ट रिवर इज माही। माही is an important river. Why Mahi is important? Because of one reason. माही का जो सिस्टम है चलने का, उसकी वजह से माही जो है ओरिजिनेट करती है इन दी धार डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, ओवर हेयर, राइट। इट ओरिजिनेट्स, और इम्पोर्टेंट है देखना इनका जो कोर्स है माही का। सो माही ओरिजिनेट्स फ्रॉम विंध्यास इन द धार डिस्ट्रिक्ट, ये विंध्यास है, और ओरिजिनेट करके जो इनका रूट है वो कुछ इस तरह का है, राइट। सो दिस इज माही, राइट। माही के बारे में पहले ये नॉर्थली चलती है, उसके बाद फिर साउथली चलती है, और इम्पॉर्टेंट है कि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार क्रॉस करती है। सो ओवर हेयर एंड ओवर हेयर। तो जब ये नॉर्थवर्ड जाती है और राजस्थान में एंटर करती है, तो ये एक बार क्रॉस करती है और वापस से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को क्रॉस करती है, व्हाइल इट इज गोइंग इनटू गुजरात। ओके। सो ओरिजिनेशन है over here, Mahi's origination, and Dhar district of मध्य प्रदेश में धार, विंध्यास, विंध्या माउंटेन्स में। उसके बाद राजस्थान गई एंड देन एंटर्स इनटू गुजरात। द सिटी ऑफ वडोदरा, इट इज हेयर, वडोदरा इट इज ऑन माही। वडोदरा शहर जो है वो माही पर है। द इम्पोर्टेंट डैम, इट्स इन हेयर, बांसवाड़ा डैम, इट्स इन राजस्थान, बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में बांसवाड़ा डैम। So important dam on Mahi is Banswara Dam. It crosses the Tropic of Cancer twice. Right. Next river is, I'll take you to the, or I'll discuss in the same map. Okay. So one river I'll discuss in the same map, then I'll change the map. Okay. So the next river is in Karnataka, and that river is Sharavati. Okay. The river Sharavati originates in Shimoga district. It's in Karnataka. Shimoga district, very important districts. Falls are there, important falls are there in Shimoga district. And Shimoga district में from the Western Ghats, these are Western Ghats over here. So यहाँ से originate करेगी and it flows like this and falls into the Arabian Sea, right? So कुछ इस तरह से इसका है. Now this is Shimoga district, I must write, and the river is Sharavati, right? Shimoga district. It's in Karnataka. Okay. Important falls in the same Shimoga district. Those are Jog Falls, which are on river, sorry, Jog. Okay. Jog Falls, or better known as Jarsopa Falls. Okay. This is on river Sharavati, Jog Falls, importantly. Then river Sharavati passes through the Palakkad Gap or the Palghat Gap. Palghat Gap is in a pass in Western Ghats. It flows through Palakkad Gap or Palghat.
which is better known as पालघाट. ठीक है. एक और रिवर पालघाट से निकलती है, which is river पोननी. It also passes from पालघाट. So शरावती पास करती है पालघाट गैप से एंड उसके बाद अरेबियन सी में मर्ज कर जाती है. द प्लेस वेयर इट मर्जेस विद अरेबियन सी इज द होनावर. होन्नवर. ठीक है. नाउ इंपॉर्टेंट है शरावती पे शरावती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और यहाँ की स्पेशल स्पीशीज लायन टेल्ड मैकैक. ठीक है. लायन टेल्ड मैकैक एक लंगूर है जिसकी जो पूंछ है वो शेर जैसी है, लायन जैसी है. राइट. In the same district, Shimoga, why I said it is important, I'll let you know Shimoga. First of all, Jog Falls है यहाँ पर. Then the highest falls in India, Kunchikal Falls. It was also situated. Kunchikal Falls, it is on Varahi River. Again, in the same Shimoga district. And then Barkana Falls, again in Shimoga district. So कुछ इस तरह से आप याद रख सकते हैं. It is on Sitha River. The same Shimoga district. ठीक है. तो ये हुआ द रिवर शरावती इन कर्नाटका. नेक्स्ट रिवर इज पेरियार. सो रिवर पेरियार, इट्स इन केरला. Though the origin of Periyar is slightly is on the borders of Tamil Nadu and Kerala, और उसको मैंने जितने भी ऑनलाइन सोर्सेज देखे वहां पर उसको तमिलनाडु ही दिया हुआ था ओरिजिन. ठीक है. सो पेरियार का द ओरिजिन इज इन शिवगिरी हिल्स right here, and it flows like this and merges in the Vembanad Lake. This is river Periyar. The origin is in Shivgiri Hills. Shivgiri Hills, Western Ghats, and it is in Tamil Nadu. Okay. केरला में फिर ये फ्लो करती हैं, वेस्ट फ्लोइंग है. और इंपॉर्टेंट डैम्स ऑन पेरियार इज इडुकी डैम. ठीक है. एंड द कोची सिटी इज सिचुएटेड ऑन दिस रिवर कोची, और कोची के पास ही में ये मर्ज कर जाती है जस्ट कोची के वेस्ट में इन दी लेक वेम्बनाड, विच इज अ बैक वाटर अगेन. कायल है वेम्बनाड लेक in Varapuza. Varapuza is a name of the city Varapuza, जहाँ पे वेम्बनाड लेक में ये मर्ज कर जाती हैं फाइनली. ठीक है. इंपॉर्टेंट डैम्स ऑन पेरियार इज मुल्ला पेरियार. इंपॉर्टेंट डैम्स एक तो इडुकी है, मैं यहीं पे लिख देता हूं, मुल्ला पेरियार. ठीक है. इडुकी एंड मुल्ला पेरियार डैम्स. पेरियार टाइगर रिजर्व भी है. यू हैव पेरियार टाइगर रिजर्व. ओके. सो दिस इज पेरियार. इसके पेरियार से आपको दो चीजें याद रहेंगी. एक तो वेम्बनाड लेक याद रहेगा, इडुकी डैम याद रहेगा, मुल्ला पेरियार डैम याद रहेगा, और शिवगिरी हिल्स एंड वेस्टर्न घाट्स इन तमिलनाडु आपको याद रहेगा. ठीक है. एंड पेरियार टाइगर रिजर्व ऑब्वियसली यू मस्ट रिमेंबर. तो एक रिवर से आपको काफी कुछ याद रह सकता है. ठीक है. नेक्स्ट रिवर इज इन गोवा. आई हैव टू जूम इन द मैप. Okay. So the next river, both the rivers are in Goa. One is Mandavi and one is Zuari. So जुआरी जो नदी है वो गोवा में ही ओरिजिनेट करती है और अरेबियन सी में मिल जाती है, बट मांडवी जो है वो कर्नाटका से आती है. सो लाइक दिस. बट दोनों का जो मर्जिंग है अरेबियन सी में वो सेम जगह पर है. सो वन इज मांडवी एंड वन इज जुआरी. आई होप यू कैन सी. वन इज जुआरी, दिस वन. Zuari, and this one is Mandvi.
I'll write about these rivers over here. Origin जुआरी का इज इन गोवा ओनली, ठीक है, और जुआरी पे एक सिटी लोकेटेड है विच इज वास्को डी गामा सिटी. Both these rivers are tidal rivers. Okay, both these rivers are tidal rivers, मांडवी एंड जुआरी. ठीक है, तो टाइडल रिवर्स के टाइड्स जो होते हैं वो इनके फ्लो को अफेक्ट करते हैं, और दोनों रिवर्स एस्चुरीज बनाती हैं. वहां पर हाई टाइड की वजह से ये रिवर्स अपना कई बार चैनल बदलती हैं. ठीक है, वास्को डी गामा सिटी इट इज ऑन जुआरी रिवर, और दोनों ही रिवर्स टाइडल रिवर्स हैं. इनका माउथ है, द माउथ्स आर ऑन द सेम प्लेस, द मार्मगांव हार्बर. ठीक है, सो द माउथ मार्मगांव हार्बर. सो शिप हार्बर भी है वहां पर, और वहीं पर दोनों का कॉन्फ्लुएंस पॉइंट भी है, और वहीं पर दोनों का माउथ भी है इन द अरेबियन सी. मांडवी रिवर पे इंपॉर्टेंट शहर है पणजी विच इज द कैपिटल ऑफ गोवा. तो वो मांडवी के ऊपर है, और मांडवी का जो ओरिजिन है इट इज इन भीमगढ़ कर्नाटका. भीमगढ़ इज इन कर्नाटका. आई एम राइटिंग ओवर हेयर, or I will write over here also to be very clear. Right, Bhimgarh. It's in Karnataka. दो इंपॉर्टेंट फॉल्स हैं मांडवी के ऊपर. मांडवी के ऊपर दो इंपॉर्टेंट फॉल्स है. वन इज दूधसागर फॉल्स, इट्स अ वाटरफॉल, दूधसागर फॉल्स, एंड वन इज वारापोहा फॉल्स. दूधसागर फॉल्स सभी ने सुना होगा, वारापोहा फॉल इज अ न्यू वन. मांडवी के ऊपर दो फॉल्स हैं, दूधसागर फॉल्स एंड वारापोहा फॉल्स. ठीक है, तो याद रखने की चीज इतनी है कि मांडवी का ओरिजिन जो है कर्नाटका में है, पणजी जो है मांडवी के ऊपर है, जुआरी के ऊपर वास्को डी गामा सिटी है विच इज ऑन जुआरी, और दोनों का जो माउथ है वो मार्मागांव में है. मार्मागांव पोर्ट है, मार्मागांव हार्बर भी है, राइट, और वहीं पर दोनों माउथ है दोनों का, और रिवर कॉन्फ्लुएंस भी करती हैं. बोथ आर फॉर्मिंग द एस्चुरीज इन अरेबियन सी, एंड बोथ आर टाइडल रिवर्स. ठीक है, तो टाइडल रिवर्स का मतलब है टाइड जो होता है वो इनके फ्लो को और इनके जो एस्चुरी फॉर्मेशन है उसको अफेक्ट करता है, बिकॉज उतना वॉल्यूम ऑफ वाटर ये दोनों नहीं लाती हैं. ठीक है, सो these were the west flowing rivers I have covered up today, and I hope I've touched every aspect of every river. ठीक है, so time is about to get over. This was it. So take care and good night.